آج ہم بات کریں گے جعلی پیروں کی. میں جھوٹا ہوں تو جو بھی آپ لوگ میرے پر فینس لگاتے ہیں میں کماتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے شدید اور کار دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو مرید بناؤں گا, آپ کو میں مرید بنا کے آپ کے بال کاٹوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں طاہر رسیل اور آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز. ناظرین آج ہم بات کریں گے جعلی پیروں کی. پاکستان اور ہمارے ازلی دشمن بھارت میں صدیوں سے جعلی پیر, گرو, بابے اپنے چیلوں کو اپنے مریدوں کی درگت بناتے آ رہے ہیں. مختلف ہیلے بہانے کر کے, جعلی تویز گھنڈا کر کے ان کو بے وقوف بناتے ہیں. اسی طرح کا ایک جعلی پیر کا واقعہ آپ نے پنجاب میں سنیں گے, لیکن راولپنڈی جیسے شہر میں بھی ایک جعلی پیر کا واقعہ سامنے آیا ہے. ایک جعلی پیر نے 78 سالہ مرید کے ساتھ کیا کیا, کیسے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, پھر اس کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا, اس کے اوپر بات کریں گے. اس مریض کے ساتھ جو 78 سالہ اس کی عمر ہے, کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, جعلی پیروں نے, بابوں نے کیا کیا, اسی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں. اب آپ کو ملائیں گے 78 سالہ اس مرید کے ساتھ جس کے اوپر ایک ظلم ہوا, اس کی ظلم کی داستان کیا ہے, یہ وہ مرید آپ کو اپنی زبانی سنائے گا. میں محمد منیر بل جان محمد ریڑھ چوک ریاشی ہوں. میں چاکرے دربار پہ گیا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو میں مرید بناتا ہوں. ادھر سے میں آ گیا ہوں, میرے پاس کام شام نہیں تھا, میں آ گیا ہوں لائن نمبر 1 میں, اور ادھر انہوں نے کہا آپ کو میں مرید بناتا ہوں. مرید بنانے کے بہانے انہوں نے مجھے ننگا کیا. ننگا کر کے میرے شدید مرچیں ڈولی ہیں میرے اوپر. مرچیں ڈول کے انہوں نے کہا آپ کو مرید بنائیں گے ہم. میں نے کہا میں مرید نہیں بننا چاہتا ہوں, مجھے چھوڑ دیں. اور پھر انہوں نے میرے بال کاٹنے شروع کر دیے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی ہے. پھر میں اب ادھر سے رات کو آیا ہوں ادھر SHO صاحب کے پاس. میری داڑھی بھی شہید انہوں نے کاٹ دی ہے. میرے یہ بال بالکل سارے انہوں نے کاٹے ہیں, یہ آگے سے دیکھ لیں, یہ سارے میری ان کو شدید کاٹ دیے ہیں. جب میں آیا ہوں رات کو ادھر, میں نے SHO صاحب کو درخواست دے دی ہے. انہوں نے فوراً کام کیا ہے کہ انہوں بندوں کو پکڑ کے لایا ہے, انہوں نے FIR کاٹ کے. اچھا چاچا یہ بتائیں کہ اس جس دربار پہ آپ گئے تھے, اس دربار کا نام کیا تھا, اور جنہوں نے آپ کے بال کاٹے ہیں وہ پیر تھے, وہاں کے متولی تھے, کون تھے وہ, ان کا نام بھی بتائیے گا. ان کا میں جب ادھر آئے ہیں میرے پاس شہزاد صاحب, انہوں نے کہا آپ کو میں مرید بناتا ہوں. میں نے کہا میں مرید نہیں بننا چاہتا ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں روزی کماتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے شدید اور کار دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو مرید بناؤں گا, آپ کو میں مرید بنا کے آپ کے بال کاٹوں گا, آپ کی داڑھی کاٹی ہے, میری داڑھی کاٹنی شروع کر دی. اچھا اس کا, اور جس نے آپ کے بال کاٹے ہیں وہ کس دربار کا متولی ہے, اس کا نام کیا ہے, اور وہ آپ کے گھر کب آئے تھے؟ وہ پرسوں رات کو آئے تھے شہزاد شاہ. دربار کا نام کیا ہے؟ بابا ناگا بادشاہ چھوئی علی خان. اور وہاں کا پیر متولی کون ہے؟ شہزاد شاہ. ناظرین آپ نے 78 سالہ مرید کی زبانی ایک کہانی سنی کہ کیسے اس پر تشدد کیا جاتا رہا, بچوں کے سامنے اس کے بال کاٹے گئے, اس کی سنت رسول کو شہید کیا گیا. یہ تو اس مرید کی زبانی تھا. لیکن ہم بات کریں گے SHO تھانہ سول لائن سے, اور بات کریں گے مقدمے کے تفتیشی آفیسر سے کہ ان ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں لائے گی, کیونکہ جعلی پیروں کی سفارشیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں. SHO صاحب بھی بتائیں گے, SHO سول لائن کے ان کو کہاں سے کیا کوئی سفارشیں آئی ہیں, اور پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ کن دفعات کے تحت درج کیا ہے, اور جب گرفتار کرنے کے لیے تفتیشی آفیسر گئے ہیں تو وہاں پہ ان کو کس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسے جو سول لائن کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک جعلی پیر کے اوپر پرچہ دیا, کن دفعات کے تحت پرچہ دیا, اور کیا کوئی سفارشیں نہیں ہیں اس جعلی پیر کی مقدمہ درج نہ کریں, گھراؤ کر لیں گے, یہ کر لیں گے؟ یہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے منیر نامی شخص کی, اور اس میں اس نے بتایا کہ اس کے پیر نے جو ہے اس کے سر کے بال اور داڑھی جو ہے وہ اس کے بال کاٹ دی. اس میں ہم نے فوری 337 34 اور 355 میں FIR درج کر کے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں مین ملزمان کو ہم نے اریسٹ کر دیا. اچھا کین صاحب یہ بتائیں کہ ایک بڑا دربار ہے وہاں پہ بابا ناگا پیر, ظاہر بات ہے مزاحمت بھی ہوئی ہوگی, سفارشیں بھی آئی ہوگی, تو کیا یہ سارا معاملہ افسران کے نوٹس میں بھی ہے, اور FIR دینے میں کوئی آپ کو دقت پیش آئی ہو, کوئی سفارشیں آئی ہوں؟ یہ ہم نے فوری طور پہ جب اپلیکیشن آئی اپنے سینئرز کے نوٹس میں دی ہے, اور ہمیں سینئرز کی طرف سے یہ فوری انسٹرکشنز ملی ہیں کہ فوری طور پہ FIR درج کریں اور ملزمان کو اریسٹ کریں. FIR درج کرنے کے بعد ہم نے فوری طور پہ جو ہے گلستان کالونی سے دونوں ملزمان کو اریسٹ کر دیا. اچھا زیادہ شاہ صاحب یہ بتائیں, جب آپ نے جعلی پیروں کو گرفتار کیا
कितने बंदे गिरफ्तार हुए और क्या वहाँ पे कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं हुआ? गिरफ्तारी कहाँ से अमल में लाई गई? मैंने जनाब SHO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक पर्चा दर्ज होने के बाद मदई की मदईयत में तो मनीर हुसैन मैंने मनीर हुसैन की मदईयत में पर्चा दर्ज होने के बाद जनाब SHO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक दो जेली पीर सैयद सजाद हुसैन शाह और उसका एक और साथी मरीज मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी के लिए गुलिस्तान कॉलोनी रेड किया। वहाँ पर काफ़ी उनके मरीदैन ने मज़ामत की, तो उसके बावजूद मैंने अपनी टीम के हमरा बड़ी मुश्किल से उनको। जी नाज़रीन, आपने SHO और तफ्तीशी अफसरान की जो गुफ्तगू थी वो भी सुनी थी, लेकिन अब मैं आपको मिलाऊंगा उस जाली पीर से। मैं पूछूंगा उस जाली पीर से कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कहाँ से उनकी लड़ी मिलती है, इस तरह का जुल्म उन्होंने 78 साल शख्स के ऊपर क्यों किया। उसी की ज़बानी सुनाते हैं। ये बताएं आपका नाम क्या और क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? तो आपने एक मुरीद के ऊपर उसके बाल काट दिए, उसकी सुन्नत शहीद कर दी, ये क्यों आपने ऐसा किया? मैंने सर उसकी सुन्नत शहीद नहीं की है, और ये कि जो उसको गैर तारीफ करने का तरीक़ाकार था उसके मुताबिक है, और उसके में जो है ना जो उसके बाल को उठा के लगाया वो लगाया गया। बाकी मामलात से जो साहब को हमने तस्वीर बताई क्या रीज़न थी या क्या वजह था। ये शख्स पीछे दरबार के नाम को यूज़ करके फ्रॉड करता रहे, जो लोगों से बाहर लेता रहे, सारी बात होती है। मैं रिस्पेक्टेबल फैमिली से, ठीक है एक गलत एक्ट हुआ, सारी बात हुई, मैं शेम हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये है कि ये जो इस बंदे ने जो अमल किया उसने हमें भी पीछे बदनाम कराया, और वो नसीराबाद थाने में भी इसके खिलाफ दरखास्त है। यही रीज़न हम इसको देते रहे कि यार ज़रा उन बंदों से मामला तुम क्लियर करो, तुम हमें दरबार का मुरीद शो करके लोगों को फ्रॉड करते रहे। यहाँ ये हमारे पास बंदा पूरा दरबार मिस्त्री का काम करता रहे, तो वो फिर इस केस के ऊपर ये आया कोई, और फिर जब हम इसकी यहाँ फैमिली में आए इसके थ्रू सारी फैमिली बैठी हुई थी, सारी बात थी, और फिर हमने इनको कंप्लेन की कि यार ये आपका रिलेटिव है, इसको हमने मिस्त्री के काम के लिए वहाँ मंगवाया, इसने वहाँ दरबार के पास मकान ले लिया, ये वहाँ फ्रॉड करता है लोगों से, आप लोग आएँ अगर मगा घुमाएँ, जिसने वहाँ लोगों से फ्रॉड किया दरबार का नाम यूज़ करके। अभी हम आप लोगों के पास कंप्लेन लेके आए, इसके चाचस ससुर में वो इसके सके साले सब बैठे हुए थे, और उन सब लोगों ने बोला कि शाह जी इसने अगर ये गलती की है तो फिर आप इसको अपने नाम के ऊपर अपने हाथ के ऊपर प्रॉपर बैठ करके अपना मुरीद बनाएं। इसलिए मेरे हाथ पे हाथ रखा, मैंने इसको कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के जो एक सैयद फकीर का तरीका था, आप ऑल ओवर पाकिस्तान फिरें, कोई उस तरह जो है ना वो यानी मैंने गैर इखलाकी हरकत नहीं की। उसके बाद जो है ना वो करती, क्योंकि आपने देखे होंगे अक्सर मलाम फुकरा वो सर नंगे गंजे फिर रहे होते हैं, तो ये एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक मैंने इसको वो किया। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं आप, लेकिन ये कौन सा तरीका है बैत करने का कि पहले टक लगाया जाता है, उसको मलंग बनाया जाता है? क्या बैत करने के लिए कलमे, नमाज, ये चीज़ें नहीं होती कि जिस तरह नमाज जो है वो होता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इस्लाम की वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी सैयद फ़कीर के हाथ पे बैत होते हैं, चाहे आप अहले सुन्नत के हैं चाहे अहले तशी के हैं, उसमें आप जब सैयद के हाथ के ऊपर बैत देते हैं ना कि शाह साहब मैं आपका बैत हूँ, तो फिर वो उसमें बंदे का साथ बंदा करते हैं सर। आप ऑल ओवर पाकिस्तान फिरें, जितने भी सादात की गद्दी हैं उनसे आप पूछें, अगर ये तरीकाकार नहीं है तो जो नहीं, तो आपने जो ये एक्ट किया है क्या इस एक्ट पे आप शर्मिंदा है? उसकी मैं सर इस एक्ट के ऊपर ठीक है अभी मैं शर्मिंदा ही हूँ सर, लाजमी सी बात है। मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से, मेरे वालिद कर्नल रिटायर्ड हैं, मैं खुद अबू धाबी पुलिस में रहा हूँ, सारी बात है। मेरे चाचा AVM कोई डायरेक्टर जनरल को किसी के इस तरह की मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दरबार है, हम खुद महकमे के सारे लोग उधर आना, मेला मजालिस सारा कुछ होना, लेकिन बाय गॉड आप जिस किस्म की तसल्ली लेना चाहते हैं ले लें। आप लोग अगर फुल जो है ना वो अगर इस बारे में इंक्वायरी करें, मैं झूठा हूँ तो जो भी आप लोग मेरे ऊपर फैंस लगाते हैं मैं हाजिर हूँ। इस शख्स ने जो अभी बिल्कुल बेगुनाह है, उसके साथ ज्यादती भी अगर आप कहते हैं हुई है, मुझे भी शर्मिंदगी है, लेकिन इस शख्स ने 3 महीने वहाँ दरबार के पास लाए, और इसने उधर हर बंदे को जो बोला कि हम इनके मुरीद हैं, इसने घर भी वहाँ पे किराए के ऊपर लिया, 2 महीने का बिल, 3 महीने के बिल्स, फिर उनकी मोटर, फिर उसके अलावा दुकानदारों से राशन, वो उन सब लोगों ने ना अपने तौर के ऊपर नसीराबाद थाने में इसके खिलाफ कंप्लेन कराई हुई है, जिसकी बेस के ऊपर सर हम आए हैं। हमने यहाँ थाने पे भी ये इनको रिक्वेस्ट बताई थी कि ये रीज़न में नहीं, फिर हम इसके घर गए,
जब हम इसके घर गए हम वो यूं करके मार कुटाई करके सर अंदर नहीं गए भाई, बहुत पूरी वादी हुआ है। हम गए हैं, इसकी पूरी फैमिली हमें मिली है रिस्पेक्टेबल तरीके से। हम छत पर बैठे हैं, चाय पानी चला है, उधर सबके सामने हमने बैठे रहे। ये बात सारा हुकूमत जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, वो बताया कि यार ये बंदा ये देखें ये हरकत करके वहाँ से भाग आया। अब जब हम इसको कांटेक्ट करते हैं ये मुझे बोलता है कि जी हम सीपीओ के पास जैसा मेरा सामान नहीं है, पूरा नहीं है, ये नहीं बोला। हमने इसको यहाँ तक बोला भाई आपका सामान पूरा नहीं, आप मालिक मकान के ऊपर केस करें, हम आपके साथ हैं। पहले मल्ला गवाह दरबार के लेफ्ट राइट कैमरेज लगे हुए हैं, हम उससे भी सीसीटीवी निकालते हैं कि इसने क्या क्या सामान निकाला। अच्छा मुझे आप ये बताएं, चले ये तो एक होगी एक राम कहानी कि उसने ये किया, आपने ना कोई कानूनी कार्रवाई की, ठीक है, आपने उसके ऊपर तशद्दुद भी किया, और सबसे अहम बात सर कि जो आप मेरे क्वेश्चन सुन लीजिएगा, सबसे अहम बात जो पीर होते हैं फकीर होते हैं सुन्नत रसूल उन्होंने रखी होती है, ठीक है। ना मैं फकीर हूँ, मैं एक सिंपली एक आम इंसान हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं पीर फकीर नहीं हूँ। जो दरबार पे बाबा जी होते हैं जो फकीर जो हैं वो आए, मैं दरबार की अंजुमन का भी सदर हूँ और जानशीन भी हूँ। मैं ना पीर हूँ ना मैं फकीर हूँ, ना मैं प्रॉपर एक आम सिंपल मैन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जॉब भी करता हूँ, सारी बातें अपनी फैमिली स्कीम 3 में हमारे घर है। मैंने आपको पहले भी बताया मैं एक अच्छी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, गली मोहल्ले की फैमिली से नहीं हूँ। तो वो उन्होंने आके हमें कंप्लेन की, तो एज अ दरबार का अंजुमन का सदर और जानशीन होने के नाते फिर उनको लेके इस ये बच्चे के हाथ हमने पैगाम भेजे हैं, ठीक है। ये मन गरट कहानी नहीं है सर, अगर आप जाएँ नसीराबाद थाने में जाके मैंने नहीं दरख्वास्त दी है। जिन बंदों से इस बंदे ने फ्रॉड किया है, जो मालिक मकान है वो मौलवी साहब है, प्रॉपर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के मौलवी साहब हैं किसी मस्जिद में। फिर अहले इलाका जो मस्जिद वाले हैं जिनसे उन्होंने ये सारी बातें की वो लोग वहाँ मौजूद है ना सर। हमने ये रिक्वेस्ट इधर भी की, और ये जो हुआ ना ये जो सारी बात है इसमें इसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, इसकी फैमिली इसके चाचे ससुरों ने सालों ने सब ने हमें बोला कि शाह जी अगर ये बाबा जी ये शिकायत लगा रहे हैं और इसने ये हरकत की है सारी बात है तो ठीक है आप इसको बैत तालब करें, इसको आप साथ लेकर जाएं दरबार। हमने फिर भी हम इसको साथ नहीं लेके गए, हमने कहा यार ठीक है हमारे, और जिस टाइम ऑन द स्पॉट भी मुझे कह रहे थे आप बेशक उसको बुलाएं, इंशाल्लाह मेरा यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। आप उसको ये पूछें कि मैंने सबके सामने ये बात बोली थी कि नजस बंद है, झूठा बंद है, मैं इसको अपने हाथ पे बैत तालब नहीं करता हूँ। बाय गॉड अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसको वाजिया रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सब ने फोर्स किया और मैंने किया बैत तालब। बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने मुलजिम की दास्तान सुनी, राम वेल एजुकेटेड है, वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो अपने हाथ पे बैत ले रहे थे, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में जाली पीरों की वजह से बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, माजी में हम सुनते थे, लेकिन आजकल ये सूरत हाल हो रही है। जाली पीर खवातीन के साथ क्या हरकतें करते हैं, कई FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं। जाली पीर कौन कौन सा गुनौना खेल खेलते हैं तमाम माशरे को भी मालूम है। लेकिन सबसे जो अहम बात है, आजकल पाकिस्तान के अक्सर दरबारों पे होता क्या है कि जो मुरीदैन होते हैं वो वहाँ पे नशा करना शुरू कर देते हैं। इस बारे में ना तो हुकूमत सोचती है और ना ही हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सोचती हैं। चंद अरसा कबल एक कानून बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कानून पास नहीं हुआ। इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर अक्सर इलाकों में होते हैं, लेकिन कोई हिम्मत करके थाने दरख्वास्त नहीं देता। यहाँ पे अभी तफ्तीश जारी है, कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है ये तो तफ्तीश ही बताएगी। ताहम हमने आपको मुलजिम का बयान भी सुनवा दिया कि वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला, सब इल्जामात तराशियाँ हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल वॉच टाइम्स, हमारी वेबसाइट watchtimespk.com पर विजिट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।